بس خاموش کړه تاسو وره دا وره ٹھیک ده خبرې رور یو 2 منټه مه کوئ او دا مشر دی د دې ځای او مطلب دا یې چې دوی د خدای پاک دا قدر ورکړی نو لږ غوندې یو 2 منټه تاسو د دې خبرې واورئ چې دوی څه ووایي تاسو به یې واورئ خوښه او خبرې به چېرې 2 منټه مه کوئ چې دې خبرې تاسو ښه ورسره کومه خبره چې کوم دا ذکر ریکارډ کوو چې دا خبره چې دلته کوم وشي چې بیا هغه تاسو سره مخکې انشاءالله دا کوي او همدغه خبره بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د علاقه کې داسې باطل عقاید والا خلق دي چې هغې ته قادیانان ویلی کېږي د حدیث په اصطلاح کې دي ته زندیق وایي او د قرآن په اصطلاح کې دي ته ملحدین وایي خو غټه خبره چې دا ده دی چې دا طاهر د دې خبرې اقرار کوي چې زه مخکې وم قادیانې بیا د هغې نه پس خدای ماته د قادیانیت نه بلکل پناه راکړه او زه د دې نه محفوظ وساتلم زه مسلمان شم چونکې دا خبره داسې راغله چې تلاوت به د هغې د کورنۍ چې کوم زنانه ده هغې په دې بنیاد باندې مې ورکړه چې دا زموږ ورور دی مسلمان دی په دې حوالې سره هغې ورته خپله کورنۍ کې ورته نکاح م ورکړه خو په هغې حوالې سره بیا د هغې نه دا خبره دغه شوه چې ته دا خبره وکړه چې زه پیغمبر یم او هغې ته ویل چې په ما باندې ایمان وروړه هغې دا خبره دې ته وکړه دا خبره دې ورسره بیا بحث مباحثه کوله نو دې ته هم دا ویل چې یاره زه پیغمبر یم نبي یم عیسی علیه السلام هغه چې دی مړ شوی دی او هغه دغه په روح کې زه راغلی یم بیا ویل چې انبیا علیه السلام سلسله هغه جاري ده زه هغه نبي راغلی یم بهرحال دا خبرې ده ته شوي دي ده بیا ما ته ټلیفون وکړو او زمونږ د دې علاقې یو نامور عالم حضرت مولانا مهدي صاحب ته ټلیفون وکړو چې هغه رایې تشریف فرما دی هغې ته دا خبره وکړه نو ما هغې ته ټلیفون وکړو دا دواړه مونږ راوغوښتو نو په کوم عین موقع کې پرون نه بله شپه د څه شپه وه تلاوت به جمعې شپه باندې دا واقعه وشوه د جمعې په شپه باندې دا واقعه وشوه چې مونږ دله ورغو دته مونږ دا خبره کوله تلاوت به د هغه نکاح باره کې خبره کوله نو دته مونږ دا خبره وکړه چې ته څه ویل غواړې هغه دا خبره وکړه چې زه نبي یم زه پیغمبر یم او د انبیا علیه السلام سلسله جاري ده چونکې ما هم د ده د پوهولو کوشش وکړو آیاتونه مې ورته ویل احادیث مې ورته ویل او مهدي مولانا صاحب هم ورته ډېر زیات عقلي دلایل او نقلي دلایل په آیاتونه احادیث باندې د پوهولو کوشش وکړو خو هغه وخت دې ځان پوه نه کړو او پوه نه شوم دې په دې باندې مضبوط ولاړو چې زه نبي یم او زه پیغمبر یم او ما باندې ما ته وحي راځي خو تاسو ما نه منئ خو کیدای شي ما نور خلک بیا ومني بهرحال په هغې باندې تلاوت به اقدام هم کولو خو مهدي صاحب هغه ورته ویل چې دته مهلت ورکړه کیدای شي دې د دې خبرې نه توبه طایب شي کیدای شي دې ناپوهه وي کیدای شي دې پوه نه وي نو د هغې حوالې سره دې بیا دغه خبره وکړه نو زمونږ د ملګرو طرفه بیا دا دغه وکړو مهلت هم ورکړو مونږ خپل مشران او علما هم په دې باندې باخبره کړه چې دغه شان طاهر دا خبره کوي او دا خبره بالکل هغه ته دغه کول پکار دي هغه پوهول پکار دي هغه ته علما کېناستل پکار دي مشران ورته پکار دي چې هغه ته مونږ واعظ او نصیحت وکړو هغه ته مونږ خبرې وکړو هغه ته مونږ دلایل پیش کړو چې په دې خبر باندې دې اماده شي چې واقع زه په غلطه باندې نو بهرحال بیا په سبا باندې د سره زموږ رابطه کېده دا د حاضر ناست دی چې دا کومې خبرې زه کوم په هغې باندې مولانا مهدي صاحب هم ګواه دی او هغه تلاوت به یو آیات به یې تاسو دواړو راشئ دې دلته دغه 2 کسان هم دلته په دې باندې ګواهان دي چې دا کومې خبرې مونږ دلته کولې هغه دا کومې خبرې چې کولې په هغې باندې مونږ ورسره کوم عقلي او نقلي دلایل ویله هغه خبره داسې ده که نه چې را کوم ویل ایاز به یې داسې ده مولانا مهدي صاحب داسې ده که نه همداسې خبره بیا د ده سره زمونږ دا ملاقات
د بیا وویل چې زما په ذهن باندې ټینشن دی زما په ذهن باندې ډېر زیات لوی ټینشن دی او زه په دې باندې چې دا کومې خبرې ما کړې دي زه د دې معافي غواړم اوس هغه سره بیا زمونږ او د مشرانو ملک حاجي شیر احمد صاحب او حاجي محسن خان صاحب او د کشان جان صاحب او مولانا حمید جان صاحب او د کشان نصیر حاجي صاحب مونږ داسې کسان لاړو او زبیر کاکا او نور محمد مونږ ټول ورسره کېناستو دغه سینجي پمپ کې او هغه ده ته هم خبره وکړه ده هغه خبره وکړه چې یاره زه ټولو نه د دې معافي غواړم څه چې ما ویلي دي همې غلط ویلي دي او د هغې باره کې زه د دې معافي غواړم زه صحیح مسلمان یم او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی بنم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما ایمان روړی دی عیسی علیه السلام زه ژوندی منم چې هغه اوس ژوندی دی په اسمانونو کې دی او اخري وخت کې به نازلېږي او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی منم او مرزا قادیاني هغه کافر او دجال او هغه دروغجن او پیغمبري دعوی کړې وه هغه کافر او په هغې باره کې زموږ د سره دا خبرې شوې وي طاهر بھائی داسې شوې وي که نه جي داسې مونږ دا خبرې شوې وي نو ته نه مونږ مهلت واخیستو چې دا خلک پروپیګنډه کوي چې یاره دا د خبره نه ده کړې او دی دا د ځان نه وایي مهدي صاحب پسې پروپیګنډه جوړه شوې ده چې دی هغې انتشار جوړوي او دا خبره داسې نه ده شوې دا د دې د هغې قایل دی دا هغه خبره کړې وه خو اوس د هغې معافي غواړي د تاسو نه نو دې د وجې تاسو ته پر امن طریقې سره درخواست چې تاسو چې دې دا خبرې اقرار وکړي او د دې خبرو باقاعده دې به لیکل کوي دستخط به کوي اس ایچ او صاحب دی هغه هم باقاعده په دې ښو خبرو باندې دستخط کوي مشران هم په دې دستخط کوي او دې حوالې سره به انشاءالله العظیم تاسو ته ټول اعلان کوي چې زما نه غلطي شوې ده معافي به غواړي او تاسو به انشاءالله العظیم دې نه پس همدغه کشان روړې ګڼئ او دغه کشان به درته څه نه وایي دی به ازاد وي زموږ د طرف نه او دغه کشان به دې مونږ دغه کوو داسې خوښ هم ده که نه داسې رټن دغه چې دی انشاءالله رسول یې معاف کوي زموږ طرفه معاف دی دې دې پاسي یو منټ خیر دی دې دې پاسي او لومبې دې په دې دغه کې وایي چې زه د دې ټولو نه معافي غواړم ښه پتې ده ما غول خوړلي دي زه بالکل په غلطه ومه او زه بیا دې خلکو نه معافي دې دې وایي ښه په ودې دې بالکل شټام راوړي هغه ټول به دې وایي دې به اوس دا خبره نه ده دا مونږ سره اقرار کړی دی دې به اوس باقاعده سره اقرار تاسو لږ معمولي کښېنئ वालेकुम बस्ते का यार تاسو لیکنی تاسو کښېنئ لکه تاسو ټول کښېنئ वालेका ټول مکوئ کنه بچې اورې چې څه وایي تاسو لږ ورته غوږ کېږدئ بسم الله الرحمن الرحیم ما چې څه خبرې کړي ما غلطي رانه شوې ده او زما دماغ باندې ډېر ټینشن و او دماغ مې ټیک هم نه دی نو دغې وجې تاسو نه معافي غواړم چې ما نه څه غلطې خبرې شوي دي او زه مسلمان یم الحمدلله او انشاءالله مسلمان به مرم هغه مو وایه صحیح ده زه ورته چې کومه خبره کوم انشاءالله دې به هغې ته مولانا صاحب یو خبره چې تاسو به چې دا وینا کوئ چې زه بغیر څه اکراه او بغیر څه مجبورۍ د دې خبرې ښه په هوش او حواس سره د دې خبرې اقرار کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی دی دا چې وایي اخري نبی دی هغه نه پس ته بل نبی نشي راتلی زه په هوش او حواس سره دا خبره کوم بغیر څه مجبورۍ او اکراه نه دا خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی دی او پیغمبر دی بغیر د سویرې نه د جدي نه بغیر لګ ورته وایا اکراه او د مجبورۍ تاسو لږ ما ته مقرره کړئ بغیر څه د اکراه او د مجبورۍ بغیر څه اکراه او مجبورۍ زه په خپل هوش او حواس سره دا د دې خبرې اقرار او تصدیق کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی او پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی پیغمبر د ده نه پس راتلونکی پیغمبر نشته دی چې نوی نبوت ورته میلاویږي د دې نه پس د بل نبی نشي راتلی نبوت ورته او څوک چې د دې نه پس د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس د نبوت دعوه کوي هغه کذاب دی دجال دی کافر دی څوک د پس دعوه کوي هغه کذاب دی دجال دی کافر دی که هغه مرزا قادیانی دی هغه مرزا قادیانی او که هغه بل یو کافر دی
او په دې سره زه دا خبره اقرار کوم چې عیسی علیه السلام ژوندی دی په دې دغه کوم چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او عیسی علیه السلام به قرب قیامت نازلیږي او عیسی علیه السلام به نازلیږي. په دې باندې زما د دې ټولو مسلمانانو ګواه جوړوم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم او ان شاء الله مسلمان یم او اخر پورې به مسلمان یم، تر مرګه پورې به مسلمان ان شاء الله مسلمان یم، اخره پورې مسلمان یم. او کومه دعوه چې ما کړې وه هغه ما غلطه کړې وه د هغې نه زه انکار کوم. ما کومه دعوه کړې وه هغه ما غلطانه کړې وه، دماغ نه راځي. چې کوم د نبوت دعوه ما کړې وه نو د هغې نه زه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. کومه دعوه ما کړې وه هغې نه انکار کوم. د نبوت دعوه چې کومه ما کړې وه د هغې نه زه انکار کوم، هغه ما غلطه کړې ده. هغه کوم نبوت دعوه ما کړې وه هغه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. دې نه پس په داسې اقدام زه چرته هم انشاءالله نه کوم، داسې اقدام او داسې خبره به زه چرته هم نه کوم. بس ټیک شو، تاسو کښېنئ. مطلب جماعت کے بارے میں اور ایسے جو نشانیوں کے بارے میں، مطلب مسیح کے اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کی ہے تو وہ میں اس سے ایگری ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں. اگر اب یہ بات ہے کہ اب یہ چودھری صاحب کا پتہ نہیں چلتا، یہ وہ ادھر جاؤ پھر وہ جو ہے تو انکاری ہو جائے، پھر کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ حضور علیہ السلام کی کتابوں سے متاثر ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ لکھا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کر کے ایک دفعہ ان سے ملیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی میرا نمائندہ دنیا پر آئے تو اس کو ملنا بھی چاہیے اور اس کی بات بھی سننی چاہیے اور اس پر ایمان بھی لانا چاہیے. تو آپ سے جو گزارش کی ہے انہوں نے ودود صاحب نے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ جب طاہر صاحب آ جائیں گے تو میں ان کو وہ پے ادا کر دوں گا، یا اگر وہ ون وے کی لے کے آ جاتے ہیں تو جانے کا انتظام میں کروں گا. اگر وہ پھر انکار کر دے تو کوئی اور میرے ساتھ پھر کر سکتا ہے؟ جی ظاہر ہے، پھر اول تو وہ نہیں کریں گے، تو جب آپ آ جائیں گے تو اگر وہ، میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، میں ان پر بدزنی نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے ایک دوست بھی ہیں، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، تو اگر نہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ اللہ تعالیٰ کرے گا واپسی کا بھی، کیونکہ آپ ایک نیک نیتی سے آ رہے ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ہاں یہی بات ہے نا کہ مطلب ایسے ہے کہ ادھر
मेरे फैमिली भी वो हंसे कि ये क्या वो उधर ऐसा ही चले गए और फिर उन्होंने इनकार भी कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप तवक्कल रखें अल्लाह ताला की ज़ात पर, और इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह ताला आपको यहाँ लेके आएगा वो इंशाल्लाह आपका जाने का इंतज़ाम भी वही खुदा करेगा। हाँ, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये बात की सफाई करना चाहता हूँ, मतलब कि साफ पता चल जाए, क्योंकि मैं उनकी काफी बातों से मैं एग्री हूँ। जी ठीक है, माशाल्लाह। मतलब जम्बा साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने काफी मतलब जो रिसर्च किया है और जो बातें वो करते हैं वो, मतलब मैं तो जो मुझे सच लगता है मैं वही कहता हूँ, जी मैं बिल्कुल। किसी एक का वो नहीं करता कि दयानतदार आदमी जो होता है, क्या जिसके कहता है। ताहिर साहब, जिस इंसान के अंदर सच्चाई होती है ना, वो सच्चाई को कबूल करता है। तो ये मुझे खुशी हुई है कि आपने उनकी किताबों की या उनकी बातों की आप तस्दीक करते हैं। हाँ, तो यही इसी वजह है ना कि मैं उधर आना चाहता हूँ, वरना मैं आना ही ना चाहता, ये बात है। जी ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप इंतजाम करके अपने टिकट का करके बंदोबस्त मुझे वो दिन बता दें, और कोशिश कीजिएगा, एक मेरी गुजारिश है कि आप ना हमबर्ग की टिकट लें। किस चीज का? हमबर्ग सिटी की है ना। अच्छा अच्छा। तो ये बात है ना, जैसे अब जो आजकल के दावेदार हैं ना, वो तो कई है, मतलब 3-4 है कम से कम। जी जी। तो उनमें जो है तो जम्बा साहब मुझे सबसे क्लोजेस्ट लगते हैं ट्रूथ के साथ। नहीं है ही 100%, 101% वो खुदा ताला का वही ये बंदा है जिसकी खबर मुखबर सादक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी दी है। तो जब आप आएंगे, मतलब ये तो अकीदों की बात है ना कि आपका अकीदा ऐसे होगा, मगर ये मैं कहता हूँ ना, मैं जो समझता हूँ कि उनकी जो बातें मैंने सुनी है और वो उससे मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ। उन्होंने जो रिसर्च किया है, जैसे जमात अहमदिया के बारे में वो कहते हैं, मतलब आजकल जो है ऐसे, और जो महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहते हैं, और जो उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो जो मसीह और महदी दो अफराद होंगे ना, वो भी मैंने देखी है, उसके साथ भी एग्री करता हूँ। जी जी। तो मुझे यही मतलब मैंने जैसे कहा ना कि आजकल के ये दावेदारों में सबसे क्लोजेस्ट ट्रूथ का मुझे जम्बा साहब लगते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरा जो दावा है, मैं वो उनको बताना चाहता हूँ क्लियर, मतलब उनसे मिलने के साथ ना, लोग भी उधर होंगे। जी जी तो बिल्कुल। फिर जो अल्लाह चाहता है वो होगा, मतलब हाँ जी हाँ जी, अगर मतलब सच्चाई को जाहिर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जब तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बातें होंगी बैठ के। तो ये बात है कि बस इसका जरा वो कर दें कि ये श्योर हो जाए ये बात, ये टिकट का, क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम मतलब ये होगा कि मेरा एक तरफ का बन सकता है, मगर अब ये अगर आप मुझे कुछ दिन पहले वो कह देते ना, आप मैंने कुछ न कांटेक्ट किया, मतलब आपने ना मुझे कुछ वो कहा, तो मैं समझा कि बस आप भूल गए, तो मैं पहले से वो कर देता तो टिकट जरा चीप मिल जाती। अब जो है तो एक्सपेंसिव है। जी ठीक है। हाँ नहीं, हमने इसलिए रब्ता नहीं किया कि हम ये समझते थे कि चूंकि उनका प्रोग्राम अगर बन गया तो वो हमें खुद कॉल कर लेंगे, तो ये हमने इसलिए कॉल नहीं की थी, वरना वैसे तो उसी वक्त बात होगी थी कि जब आप चाहें कॉल कर लिया करें। अगर मैं कुछ दिन पहले वो कर देता ना, तो वो मतलब जो हाफ में ऐसे मिल जाती, तो मैं अपने आप ही तरफ से बसारा ले लेता, मगर अब जो है तो अब वो बढ़ गया है, तो वो जो है तो जैसे आपने कहा, फिर अब ये भी अजीब बात है, वो चौधरी साहब तो मतलब कहते हैं, मगर मैं तो उनको नहीं जानता, और पता नहीं कि मतलब फिर आगे से फिर वो हो जाए तो फिर अब देखता हूँ ना। आप ऐसे कुछ सोचे, मैं जम्बा साहब के साथ भी बात कर लूंगा कि अगर ऐसे कुछ तरीका हो जाए कि वन वे का मेरे साथ हेल्प हो जाए, तो मैं कुछ कर लूँ। जी ताहिर साहब, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको फिलहाल, चूंकि वो वदू साहब यहाँ पर नहीं है, वो घर से बाहर हैं,
اگر آپ یہاں اپنے وہاں سے کسی دوست سے یا کسی ذریعے آپ وہ اس وقت دونوں طرف کی لے لیں تو وہ آتے ہی جتنے کی ٹکٹ ہوگی وہ ہاف دے دیں گے آپ کو. اچھا اگر آپ ون وے کی لے کے آ جاتے ہیں تو جاننے کا انتظام وہ کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بات سے وہ ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا میں پھر سوچتا ہوں مگر یہ بات ایسے انکمپلیٹ سی ہے نا، انہوں نے کہا تھا تو اگر ایسے ہو سکتا کہ وہ مجھے وہ میں تو یہی اسی لیے میں وہ اور میں کیا کرتا ہوں، صرف یہ ٹکٹ لینا چاہتا ہوں، ادھر آتا ہوں کہ لوگوں کو سچائی سمجھ مطلب آ جائے اور دیکھ لے مطلب. اور تو میں تو اس پیسوں سے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ میں بات سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ بعض اوقات اگر آپ اس طرح بعض لوگ کر جاتے ہیں کہ کوئی وعدہ خلافی کر کے پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتے، لیکن چونکہ آپ کا یہاں سے آنا اس کو بھی پتہ ہے، ودود صاحب کو بھی، کہ اتنی دور سے آنا ہے اور یہاں پر پھر کس طرح وہ واپسی کا انتظام ہوگا. تو انہوں نے یہ بات میں نے کل کال کی ہے، انہوں نے یہی مجھے گزارش کی ہے کہ میں گھر سے باہر ہوں اور میرا یہ میسج دے دیں طاہر صاحب کو کہ وہ اپنا ٹکٹ لے کے جب آ جائیں گے تو جتنے کی وہ ٹکٹ ہوگی تو اس کی میں ہاف پہ میں ادا کر دوں گا. میں دیکھتا ہوں ایسا اگر کچھ بنا سکتا ہوں نا تو ہاں بہتر میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ جب آپ اسی وقت لے لیں گے ایک تو سستی ہوگی اور دوسرے وہ آتے ہی جلسے پر وہ جب آئیں گے تو وہاں آپ کو وہ پے ادا کر دیں گے. تو بس یہ مطلب ٹرسٹ کی بات ہے، پتہ نہیں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. ہاں نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ امید رکھیں اور ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے اچھا پھر انشاءاللہ بات ہوگی، میں دیکھتا ہوں. آپ ایسے کوشش کریں اگر کسی طریقے سے مطلب ایسے کچھ ہو سکے کہ مجھے وہ سینڈ کر دینا تو میں بس وہ ایک گارنٹیڈ ہو جائے گا. ہاں نہیں اس وقت چونکہ انہوں نے میں نے کل ان کے آگے یہ ساری بات رکھی تھی کہ کال آئی ہے طاہر صاحب کی اور یہ معاملہ ہے آپ دونوں کے لیے جو ہے نا وہ پھر مہنگا ہو جائے گا سلسلہ. تو اگر آپ اس طرح کر لیں تو یہ دونوں کے لیے فائدہ ہے اس میں. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت چونکہ گھر سے باہر ہوں، ان کا بھی ایک پرابلم آ گئی ہے، وہ اگر 2-3 دن پہلے یہ بات آ جاتی تو پھر وہ یہاں پر ہی تھے، گھر میں ہی تھے. تو اب وہاں وہ مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ طاہر صاحب سے یہ میری طرف سے میسج دے دیں کہ آپ نا لے کے آ جائیں تو جو ٹکٹ ہوگی اس کے ہاف پے میں ادا کر دوں. تو آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ پھر انکاری تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ بے فکر ہو جائیں آپ، جب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا اور سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا. جانے کا بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا. اور اگر وہ میری بات کو نہ مانے مطلب یہ جو مطلب جمبا صاحب اور یہ اگر میرے دعوے کو بھی یہ لوگ تو پھر مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے. نہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ وہ تو ایک بات چیت ہوگی، آپ کی حضور علیہ السلام سے بات ہوگی یا دوسرے دوستوں سے آپ بات کریں گے، وہاں پر جلسے میں شامل ہوں گے، تو یہ تو ایک آپس کی گفتگو ہوگی. تو اس کا تو ان باتوں سے کوئی نہیں ہے نا کہ یہاں کوئی جھگڑا تھوڑی ہونا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی بات نہ ہو. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ بات ہونی بھی چاہیے. اور سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ شورا اسی لیے ہے کہ بیٹھ میں کوئی بھی اگر اختلاف ہو گیا تو بیٹھ کے مشورہ کریں، کوئی بھی کام ہے بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہوگا نا. میں نے آپ کے ایک ویڈیو 2 ویڈیو دیکھی ہیں، وہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے تو مطلب آپ نے کافی اچھی اس میں باتیں کی ہیں. جی شکریہ جزاکم اللہ. وہ آپ نے وہ پچھلے جلسوں میں میرے خیال میں بنائی تھی. ہاں جی پچھلے جلسہ میں مسیح اور امام مہدی علیحدہ علیحدہ 2 وجود ہیں، اس پر میری تقریر تھی. اچھا وہ کون سے ڈیٹ کی ویڈیو ہے؟ یہ پچھلا جو جلسہ گزرا ہے نا 2013 کا،
अच्छा, अगस्त में? हाँ जी, अगस्त में। अच्छा, वो मैं देखूंगा, फिर वो मिल जाए तो। जी, उसमें है। और फिर मेरी यहाँ जो ये जलसा आ रहा है इसमें भी है मेरी तकरीर, 16 तारीख को है मेरी। अच्छा अच्छा, ये जर्मनी के वो जो पहले एक वो थे, वो लोकल अमीर थे ना, जो जमात अहमदिया के, वो और भी है? उनका नाम बता दें आप। वो जो जर्मन जो थे। जी, वो एक तो उनकी जमात के अभी भी वो अमीर जर्मनी यहाँ के ही रहने वाले हैं, वो पुराने चले आ रहे हैं उनकी जमात के अमीर। वो ऐसे वो मतलब अंग्रेज जर्मन थे ना? जी जी, वो अब्दुल्ला वागस या वागा। हाँ हाँ, यही यही वाला। हाँ, ये उनका नाम है, वो अभी अमीर वही हैं उनकी जमात के। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। हाँ जी ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकुमुल्लाह। आप ना ये फिर करके मुझे वो डेट का और हमबर्ग की टिकट का ना ये करके फिर मुझे आप कॉल करके बता दें। अच्छा ठीक है, फिर मतलब मैं ऐसे कुछ वो करता हूँ ना, कुछ सोचता हूँ, सेटअप करता हूँ कि ऐसे क्या वो हो सकता है। हाँ जी ठीक है, चूँकि आप जब मुझे पहले बता देंगे तो उस लिहाज से फिर हमने आपका यहाँ जो रहायश का करना है, क्या करना है, वो फिर मैं आपको साथ ही बता दूँगा। ठीक है, सही है। जी ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो रहने का है या रहायश का कोई मसला नहीं है, क्योंकि 3 दिन तमाम मेहमान जिधर रहेंगे उधर ही आप रहेंगे। हाँ, बाकी जब जलसा ख़त्म हो जाएगा, आप रहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना जो फिर टिकट जिस हिसाब से आप जाना वापसी आपकी होगी, तो उतने दिन 1 2 3 दिन जो होंगे वो फिर आप जैसे लोग यहाँ अब मेहमान अपने-अपने घरों में फिर चले जाएँगे, तो फिर आपकी भी रहायश किसी एक दोस्त के साथ रहायश हो जाएगी उतने दिन तक, जितने दिन तक वो टिकट का इंतज़ाम नहीं हो जाता। अच्छा जी, मतलब ये हैम्बर्ग में थे, कहाँ पर? जी, जलसा तो होगा वहाँ कील में। अच्छा तो कील में 3 दिन जलसा होगा, उसके बाद फिर बाज़ लोग फ्रैंकफर्ट से जो आते हैं वो वापस फ्रैंकफर्ट जाएंगे, बर्लिन जाएंगे, इसी तरह हमबर्ग आएंगे, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे वापस। तो वो फिर अपने साथ ही कुछ दोस्तों को वो ले जाते हैं, मसलन लंदन वाले जो हैं वो अगर किसी के साथ जाना चाहें तो उनकी मर्जी है, वरना वो वहाँ पर ही हुजूर के पास ही ठहरते हैं ज़्यादातर। उधर कील में ठहरते हैं? जी, कील में ही हुजूर के पास ही ठहर जाते हैं और वहाँ पर फिर उनका इंतजाम किया जाता है। कितने दिन के लिए? अब वहाँ जो अपने मकान हैं, अपने मकानों में ही जिस तरह वो मेहमान बन के फिर थोड़ा मेहमान जब आ जाते हैं तो होती तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर चूंकि वो मेहमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, फिर उनका रहायश का इंतज़ाम किया जाता है। ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ। जी ठीक है। हाँ, आप ये करके तो मुझे बता दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकुमुल्लाह, हसन जज़ाकुल्लाह हाफ़िज़। आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा मुझे। वालेकुम सलाम। ठीक है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सब खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाए कैसे हैं? जी ताहिर साहब, आपने गुज़श्ता कहा था दिन कि मैं अपनी सच्चाई के ना दलाइल आप लोगों को दूंगा, तो आप अपना बताइएगा मुअय्यन दावा और अपनी सच्चाई के दलाइल। तो मैंने काफी मतलब आपको बताया कि मेरा जिक्र कुरान शरीफ में है, उससे बड़ी क्या दलील हो सकती है। वो सूरह तकवीर मेरे बारे में है और इस वक्त के बारे में, और जो है तो महदी अलैहिस्सलाम उनकी पेशन गोई भी है, और वो जो 1886 वाली पेशन गोई है, तो ये सब जो है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। नहीं, पहले मैंने आपसे आपके दावा की दलील पूछी थी, तो आपने मुझे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने ना दावा की दलील पेश करें।
आप पूछे मतलब कैसे दलील आप मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह 1 सदी कबल हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने लोगों के गलत अकीदा को कुरान करीम से 30 आयात से ये साबित किया कि इनका अकीदा ये दुरुस्त नहीं है कि मसीह ईसा इब्न मरियम जो हैं वो जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। 30 आयात से साबित किया है कि वो वफात पा चुके हैं। तो आप अपने पास इस वक्त के लोगों के जो अकायद हैं इनकी किस तरह नफी करते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, और क्या दलील रखते हैं इनको अपनी सच्चाई की? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं भी कुरान शरीफ से बता रहा हूँ कि उसमें जो इस वक्त के बारे में है जिक्र वो जो है क्लियर सूरह तकवीर में है। फिर मेरा जिधर जिक्र है वो आयातें मैं आपको बता चुका हूँ और फिर भी बताऊंगा कि वो जो है तो ये आयात है। और जो है तो गलतियां वही मतलब है जो ये लोग जो मानते हैं कि मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है। अपनी सुनाए? बस खैरियत है। हाँ जी, और जनाब ठीक ठाक? अच्छा ताहिर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये पेशगोई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 20 फरवरी 1886 की, तो मेरा आपके ऊपर सवाल है कि इसकी सबसे बड़ी इलामत क्या है इस पेशगोई की? बड़ी अलामत मतलब क्या आपका मतलब? यानी इसमें कुछ जिक्र किया है अल्लाह ताला ने, तो इस पेशगोई में सबसे बड़ी उस आने वाले की निशानी क्या बताई है अल्लाह ताला ने, या अलामत क्या बताई है? ये तो सभी एक पेशगोई है, तो उसमें तो सारे अल्फाज मतलब वो है इम्पोर्टेंट है। नहीं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कौन सी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है जो उसकी सबसे बड़ी निशानी है? सबसे बड़ी निशानी मैं तो सभी को इम्पोर्टेंट है कि वो समझता हूँ। ताहिर साहब, मैंने ये गुजारिश की थी आपसे कि आपको इस पेशगोई के मतलब बिल्कुल ही इल्म नहीं है, तो आप कहते थे कि नहीं मुझे इल्म है। देखें, आज आपके इल्म का पता चल गया ना कि आपको इस पेशगोई का पता ही नहीं कि ये पेशगोई है क्या चीज। तो अच्छा, ये तो मतलब आप इसके बारे में अपना ख्याल रखते हैं, मैं जो है तो अपना ख्याल रखता हूँ, अपना सोच रखता हूँ। अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताता हूँ कि इस पेशगोई में उस आने वाले की जो अलामत बताई है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सख्त ज़हीनो फ़हीम होगा और दिल का हलीम, और उलूमे ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। और 3 को 4 करने वाला होगा, यानी उलूमे ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा और वो 3 को 4 करने वाला होगा। तो जिस शख्स ने 3 को 4 किया है वही इसका असल मिसदाक है। हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तो उनको सख्त ज़हीनो फ़हीम बनाया है, दूसरा दिल का हलीम, तीसरा अल्लाह ताला ने उनको उलूमे ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया है, और उन्होंने फिर ये जो 3 को 4 करने वाला है ना, ये भी अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है। उन्होंने एक किताब, इल्हामी किताब लिखी है जिसका नाम नेकी खुदा है या वर्चू इज गॉड। वो उनकी इल्हामी किताब है। कसरत मुकालमा मुखातबा इलाहिया अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम के साथ किया है, तो ये उनकी दलील है सच्चाई की। तो आपको तो इस पेशगोई का इल्म ही नहीं, आप किस तरह कहते हैं कि ये पेशगोई को मैं जानता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ ये सारी पेशगोई जो है मेरे बारे में है। नहीं, आप तो कह देते हैं कि मेरे बारे में है, लेकिन आपको इल्म है नहीं इस पेशगोई का कि इसमें सबसे बड़ी निशानी कौन सी है, ये इलामत कौन सी है।
ये सभी बड़ी वो है बातें हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें ये तो नहीं है कि इसमें वो करें कि मतलब कुछ है और कुछ नहीं है उसमें इम्पोर्टेंट। एक दूसरी बात यह है कि आप इसको दो वजूदों पर समझते हैं जी। और मैं तो ये एक ही वजूद के बारे में है। आप कोई मुझे हवाला दें कि ये एक वजूद है। ये देखिए, ये जो है तो सारी पेशनगोई एक ही वजूद के बारे में है और इसको वो नहीं करना चाहिए कि इसको मतलब टुकड़े करना नहीं चाहिए इसको। देखें, मैं आपके सामने एक हवाला पेश करता हूं जिससे ये साबित होता है कि ये दो पेशगोइयां हैं, दो वजूदों पर मुश्तमिल हैं। मैं वो हवाला पढ़ देता हूं। हजूर हजरत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का जो आसमान से आता है, ये तमाम इबारत चंद रोज़ा जिंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि मेहमान वही होता है जो चंद रोज़ा रहकर चला जावे और देखते देखते रुखसत हो जाए, और बाद का फिक्रा मुस्लिम मऊद की तरफ इशारा है और आखिर तक उसकी तारीफ है। 20 फरवरी 1886 की पेशगोई दो पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी जो गलती से एक समझी गई और बाद में इल्हाम इलाही ने इस गलती को रफा कर दिया। तज़किरा सफ़ा 109। देखना, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाद में इल्हाम इलाही ने इस गलती को रफा कर दिया। तो जब हजूर इल्हाम से ये बात कर रहे हैं तो आपकी तो बात झूठी होगी, आप यहाँ इस झूठे साबित हो जाते हैं ताहिर साहब। नहीं तो फिर वो इल्हाम कहाँ पर है? ये हजूर जो बात कर रहे हैं ये इल्हाम की ही बात कर रहे हैं कि इल्हाम से खुदा ने मुझे ये बताया कि ये दो पेशगोइयां जो हैं, हजूर फरमाते हैं दो पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी। ये इल्हाम की तो बात कर रहे हैं हजूर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इल्हाम अगर है तो महदी अलैहिस्सलाम तो वो तो सारे शाया करते थे, इल्हाम तो कहाँ है इसके बारे में? नहीं, दो वजूदों के बारे में ये तहरीर जो हजूर ने लिखी है इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने पहले गलती की थी, इसके उसमें इज्तिहादी गलती उन्होंने खुद कहा था कि मुझसे इज्तिहादी गलती हो गई है कि मैंने समझा था कि वो बशीर अहमद के बारे में। तो सारे लोगों ने फिर वो शोर जो शुरू किया था, तो ये उसी तरह वो है, गलती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप एक बहतान बांध रहे हैं हजूर अलैहिस्सलाम पर, लेकिन हजूर इल्हाम की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इल्हाम से मुझे ये बात बताई है कि दो पेशगोइयों पर ये पेशगोई मुश्तमिल है। आपको यही नहीं पता कि ये पेशगोई एक है या दो हैं। अच्छा, मैं इसकी एक और दलील देता हूं। आप कहते हैं कि ये एक वजूद है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पेशगोई के अंदर दो वजूद हैं। मैं एक और हजूर अलैहिस्सलाम का हवाला आपके सामने पढ़ता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 463 पर फरमाते हैं, और खुदा ताला ने मुझ पर यह भी जाहिर किया कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई हकीकत में दो सईद लड़कों के पैदा होने पर मुश्तमिल थी, और इस इबारत तक के मुबारक वो जो आसमान से आता है पहले बशीर की निस्बत पेशगोई है, जो रूहानी तौर पर नुज़ूल रहमत का मूजिब हुआ, और उसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की निस्बत है। तो ये आप तो यहाँ पर भी झूठे हो गए हैं ताहिर साहब। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये इस पेशगोई के अंदर दो वजूद हैं और आप कहते हैं कि एक वजूद है। देखिए, ये तो उन्होंने खुद कहा था कि उनसे वो गलती हो गई है इसको समझने में, तो ये जो तो फिर उसी तरह वो गलती है। मतलब ये है कि ये तो एक शख्स के बारे में सारी पेशनगोई है। इसको तो ये जम्बा साहब जो है तो ये ज़की गुलाम के साथ क्यों स्टक हो गया है कि वो बस उसी लफ्ज को वो बार बार कहता है। देखें ताहिर साहब, आपको चूंकि इस पेशगोई का बिल्कुल ही इल्म नहीं है, अगर आप एक मुझे हवाला दे सकते हैं ऐसा कोई कि ये इसमें लिखा हो कि ये एक वजूद है हजूर अलैहिस्सलाम की तहरीरात में से या किसी इल्हाम से, ये आप मुझे साबित कर सकते हैं कि ये एक ही वजूद है या एक पेशगोई पर मुश्तमिल है? ये देखिए, मैंने उस दिन भी आपको समझा दिया कि इसमें जो अल्फाज है ना उससे साफ जाहिर होता है ये जो अल्फाज है कि वो जो आसमान से आता है,
मैंने ये समझा दिया कि आसमान से जो है तो वो सिर्फ नबी आते हैं और जो है तो वो नहीं होते। जी तो बिल्कुल। ये उधर जो है फिर इज़ाल अवहाम के जो किताब में पेशनगोई है उसमें भी यही अल्फाज है कि वो आसमान से उतरेगा। तो यही बात है, वो मुझे अल्लाह ने बताया कि वो मेरे बारे में है, वो जो इज़ाल अवहाम की पेशनगोई है, तो ये उसी के अल्फाज है। अरे ताहिर भाई साहब, हजूर मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि आप इल्म ज़ाहरी व बातनी में कैसे पुर हुए हैं, वो तो पहले हमें क्लियरेंस करें। आप कह रहे हैं ये पेशन गोई मेरी तरफ आती है, कैसे आती है? आप पहले अपना इल्म ज़ाहिर व बातनी तो दिखाएं। तो कैसे दिखाऊं, क्या मतलब? उस पेशन गोई में सबसे मेन पोजीशन है इल्म ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा। आप किस तरह पुर हुए हैं? ये मैं नहीं, सारे अल्फाज उसके इम्पोर्टेंट है, वो है क्यों है, आप क्यों उसके टुकड़े शुरू किए हैं? चलो हम एक टुकड़ा पूछ रहे हैं ना आपसे कि आपका इल्म ज़ाहरी व बातनी कितना है, आप कितने अल्लाह को पता है। अल्लाह को क्यों पता है? जब अल्लाह ने कहा कि जब मैं उसको भेजूंगा वो इल्म ज़ाहिर व बातनी से पुर होगा। आप कह रहे अल्लाह को पता है, आप फिर अल्लाह से ही जाके बातें किया कीजिए, लोगों से तो ना करें। नहीं, अल्लाह ने जब कहा है तो उसको पता है कि उसने कैसे मुझे ये नाम दिया है। जब मैंने आपसे पिछली बार पूछा था भाई साहब, आपको उफक में अल्लाह से मुलाकात हुई, आपने कहा अल्लाह से तो मरने के बाद मुलाकात होती है। मैंने आपको कहा एक मैं गवाह हूँ, एक आपके कैनेडा में गवाह है, उनकी मुलाकात अक्सर अल्लाह से होती है। आप कहते हैं नहीं होती। आप किस तरह मतलब पुर किए गए इल्म ज़ाहरी व बातनी से जब आपकी मुलाकात ही अल्लाह से नहीं हुई? देखिए अल्लाह तो कराम चीज में कहता है, मेरी पहले बात सुन ले, अल्लाह तो कराम चीज में कहता है कि मैं कुछ नबियों से ज़ाहिर में भी बात की है मैंने। ये तो हर मुसलमान को पता है। अगर आप नबी हैं तो आप कहते हैं कि मुझसे बात ही नहीं हुई। नहीं, क्यों किसने देखा है अल्लाह को? किसने देखा है? आप कहते हैं मुलाकात जो उसी आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आयत आप कोट कर रहे हैं उसमें मुखातब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन सा आयत? जो आप सूरह तकवीर की आयत पेश करते हैं उसमें आपको पता है उफक किसे कहते हैं? हाँ, हराइजन को। जी, हराइजन को कहते हैं ना। नहीं, एक्सप्लेन करें, उर्दू में करें। उर्दू मैंने आपको बताया, इतना मुझे नहीं आता। उफक वही हो ना जहाँ पर जमीन आसमान मिलता है। अच्छा, तो आपने वो जगह देखी है? तो मैं कहा ना, ऐसा ही कह रहा हूँ। फिर देखें, ये उफक नहीं। भाई साहब, आप उफक उस जिरगे को तो नहीं कह रहे जिस वो जो गैस पंप के पास था? असल में ये ना लफ्ज कुरान मजीद में उफक भी आया है और अफाक भी आया। अफाक पढ़ा है आपने कुरान मजीद से? उफक जो है तो वो तो सब समझते हैं, हराइजन को बोलते हैं जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अफाक लफ्ज पढ़ा है कुरान मजीद से? नहीं पढ़ा। मैं ये पढ़ता हूँ, सूरह शुरा की आयत नंबर 222 है। अल्लाह ताला फरमाता है इसमें, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ले अफाकिन असीम। अफाकिन असीम, आपका नाम नसीम है, तो इसका तर्जमा यह है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? शैतान हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। युल्कून समआ व अक्सारुहुम कज़्ज़िबून, वो अपने कान आसमान की तरफ लगाते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। अफाकिन असीम का मतलब होता है कि गुनाहगार झूठे। तो क्या मतलब? मैंने ये आयत पेश किया कि ये जो आप कह रहे हैं ना, तो ये तो शयातीन उतरते हैं झूठे बंदे के ऊपर ना। तो कुरान मजीद की ये सूरह शुरा की आप आयत ये पढ़ें, 222, 23 और 24।
तो ये आपका हाल इन आयात के मुताबिक आप तो आपके ऊपर जो आप कहते हैं मेरे साथ मामला है, तो ये तो आप इन आयात में आपका जिक्र है। ये तो आपका ख्याल है ना। नहीं, मैं तो दलील से आपसे बात कर रहा हूँ, कोई मैं अपने पास से तो नहीं कर रहा। आपसे ही लफ्ज आप उफक अपने ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके बारे में, आप दोनों के बारे में कि शैतान आप पर उतरते हैं। नहीं, हम तो दावा नहीं रखते ना कि हमारे ऊपर कोई वही नाजिल होती है, क्योंकि आप कहते हैं कि ये मुझे हुआ है, हालांकि किसी मुदई का इल्हाम हुज्जत नहीं हुआ करता। जो आप हमें ख्वाबें बताते हैं ना कि ख्वाब में मैं अपने ख्वाब पेश कर रहा हूँ, किसी मुदई की ख्वाब या उसका इल्हाम हुज्जत नहीं हुआ करता। हाँ, दलाइल हुज्जत हुआ करते हैं। आप अपनी सच्चाई के दलाइल पेश करें। मेरा दावा है ये, अभी आप मानना चाहते हैं तो मान ले, नहीं मानना तो आपका काम है। नहीं, हमें दलाइल देंगे तो देखें ना आप दलाइल तो मैंने बता दिए कि इधर इधर मेरा कुरान शरीफ में जिक्र है, इधर जो है तो महदी अलैहिस्सलाम की किताब में, हदीसों में, तो और क्या करूं। आप जिनको महदी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आपने उन्हीं को तो गालियां निकाल ली अपनी वीडियो में। आप पर शैतान ज्यादा उतरते हैं। नहीं, आप जिनको महदी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आपने जिरगे के सामने तो उन्हीं को गालियां दी हैं, और फिर कहते हैं कि फरिश्ता आपको बताता है। देखें ताहिर साहब, ये बात जो वदूद साहब ने की है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को 2011 में ये जो यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो ऑन हुई है, उसमें आपने हजूर अलैहिस्सलाम को नऊज़ काफिर और दजाल कहा है। तो ये तो उन्होंने खुद लिखा है कि जो तशरीह नबूवत का दावा करते हैं वो जो है तो कज़ाब और दज्जाल है। ये तो खुद उन्होंने लिखा है। ये सुनिएगा आप अपने अल्फाज में, अभी आपके सामने वो ऑन ईयर करता हूँ, ये देखें आपने क्या कहा है। तो खुद उन्होंने लिखा है। ये सुनिएगा, एक मिनट ये सुने आप अपनी बात। ये मैंने सुना है जी। आप इस वीडियो में ये 11 मिनट और तकरीबन 23 सेकंड की ये वीडियो है आपकी। इसमें आपने खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़ी है, फिर आप कहते हैं कि मैंने जो बातें की हैं मुझसे गलती हुई है और मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन थी और मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया ना, यही हो जाता। हाँ, तो आप क्या आपका दिमाग ठीक नहीं है? आपने उस वक्त कहा है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा आगे करके और सुनवाता हूँ आपको। हाँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं था ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसमें आप ये जो बात आगे चली है, फिर यहाँ पर आप कहते हैं कि और इस वजह से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ और मुझसे गलत बातें हुई और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मैं मुसलमान रहूंगा। आगे फिर मुफ्ती वाजिद साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं जो आप खड़े हो गए हैं, आप जो मेरे पीछे पीछे इकरार करें। लोगों ने कहा है कि ये जो पखाना आपने खाया है, तो आप कहें खड़े होके कि ये आपने पखाना खाया है। मैंने वैसे नहीं कहा। हाँ, ये सुनिएगा अपनी बात आप दोबारा। हाँ, ये देखें आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं आज होशो हवास ये इकरार करता हूँ बगैर किसी मजबूरी के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और उनके बाद शुरू में कह दिया कि दिमाग मेरा नहीं ठीक था। मसलन क्या था आपके दिमाग को उस वक्त? मेरा दिमाग फिजिकली ठीक नहीं था, मुझे इंजरी हुई थी। अच्छा, आप मेडिसिन खाते थे उस वक्त कोई? नहीं, मेडिसिन तो नहीं कर रहा था, मगर फिजिकल इंजरी हुई थी। अच्छा,
तो फिर ये आगे सुनिए, थोड़ा सा आपने ना और बातें भी की हैं, ये सुनिएगा मुफ्ती वाजिद साहब से आगे भी आपने कुछ कहा है। होश और हवास सदा खबर को बगैर समझ बुरे और इकराह नदा खबर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और पैगंबर। हाँ, यहाँ पर फिर आपने दूसरी मर्तबा ये कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है। ये आपने 3 दफा हल्फ। मैं भी कहता हूँ हाँ कि उसके तो शरीयत का नबी आखिरी, उसके बाद कोई नया मजहब नहीं है। नहीं, वहाँ वो ये नहीं, मुफ्ती वाजिद साहब आपसे ये इकरार नहीं ले रहे कि शरीयत वाले नबी की बात हो रही है, यह गैर शरी नबी की बात हो ही नहीं रही। वो कहता है कि दावा नबूवत यानी कि किसी किस्म का भी नबी। वो तो एक नबूवत समझते हैं और किस्म को समझते नहीं है। नहीं, क्यों नहीं समझते? वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत के कायल नहीं है। वो समझते और किस्म फिर मुसलमान आते। तो ये आगे सुनिएगा, आप क्या कहते हैं, ये सुनिए। आपने कहा कि वो आपको मारना चाहते हैं। कह रहा था अगर वो और किस्म की नबूवत समझते मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सुनिएगा अपना बदू साहब, आप ना खामोशी से सुनिएगा। ये इन्होंने जो ये इस वीडियो के तकरीबन 9 मिनट और 9 मिनट और 2 सेकंड पर क्या ये फरमाते हैं, सुनिएगा। होश और हवास सरा खबर इकरार और तस्दीक को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और पैगंबर दे। मैंने क्या दिया है, कितने बार कहेंगे? दना पास गादलुन के पैगंबर निश्ता दे चनवी नबूवत और मिलावेगी। हाँ, यहाँ पर आपने देखे ना, फिर आपने कहा कि उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी का दावा करेगा। मैंने कब और नबी नहीं आ सकते, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तशरीह नबी दूसरा मजहब लाए। नहीं, उन्होंने उनके पीछे आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी किसी किस्म का नबी होने का दावा करेगा। वो ये सुनिए आप क्या कहते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर आपने फिर कहा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करे वो काफर है, दजाल है और कज़ाब। कह रहा हूँ वो तशरीह की तो बात वो नहीं कर रहा, मुफ्ती वाजिद साहब के मुंह से तो तशरीह नबूवत का लफ्ज नहीं निकल रहा। वो तो और यही किस्म समझते हैं, और क्या समझते हैं, उनसे फोन करे पूछ ले। बिल्कुल, ये ये देखें, यहाँ पर आपने कहा कि मिर्जा कादियानी या कोई और वो अगर दावा नबूवत करता है तो वो काफर है और दजाल है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ आप वही कह रहे हैं। और उन्होंने खुद लिखा है कि जो कोई भी ऐसे तशरीह नबूवत का करेगा वो दजाल कज़ाब होगा। ये देखें, आपने हजरत इमाम मेहदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये बातें की हैं, ये दोबारा सुनिएगा। समझ रहे थे कि वो तशरीह नबी है ना। अच्छा, मैं आता हूँ। अच्छा, ये देखें ताहिर साहब, आपने यहाँ पर ये भी बात की है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। हाँ, तो रूह से मौजूद है ना। अरे 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा जी ताहिर साहब, ये आपने 10 मिनट बात 10 मिनट इस जो वीडियो है आपकी, इसके 10 मिनट पर आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं इकरार करता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, जिंदा आसमान पर हैं वो, यानी जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। इनको इनकी बात सुना दे। वो तो वो है ना कि रूह के साथ तो मौजूद है ना। नहीं, आपने जो उनका अकीदा है वही आप दोहरा रहे हैं कि मैं। वैसे ताहिर साहब, आप जितना भी दजल कोई नहीं कर सकता। देखिए, आपको ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने जब बात की है तो आप मान दें कि ये बातें मैंने की हैं वहां पर, इसमें क्यों शर्मा रहे हैं आप ताहिर साहब? तो ये कह रहा हूँ कि वो आसमान से
मतलब आसमान पे मौजूद है, वो तो सब मानते हैं कि वो रूह से मौजूद है, हर नेक इंसान आसमान की तरफ जाता है। तो आप अगली बात कर रहे हैं कि वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, ये सुनिए। پدې باندې زما د ټولو مسلمانانو ګواه جوړوم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم او ان شاء الله مسلمان یم او اخر پورې به مسلمان یم تر مرګ پورې. آپ کہتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت کے نزدیک وہ نازل ہوں گے، اور لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں اور انشاءاللہ مسلمان ہوں اور مرتے وقت تک میں مسلمان رہوں گا۔ تو مسلمان ہی ہوں تو اور کیا؟ تو آگے پھر سنیے آپ۔ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اور میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نے یہ غلط کیا ہے۔ 10 منٹ اور 29 سیکنڈ پر آپ طاہر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، مفتی واجد صاحب کو، کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے اور اس سے میں انکار کرتا ہوں، اور جو میں نے کیا ہے یہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ اقرار حلف اٹھا کے یہ کیا ہے وہاں پر۔ کہاں پر جی کہاں پر کا ہے یہ ابھی سنیں، میں آپ کو اسی لیے سنوا رہا ہوں۔ د نبوت دعوه چې کومه ما کړې وه د هغې نه زه انکار کوم، هغه ما غلطه کړې ده، ما غلطه کړې ده، دې نه پس به داسې اقدام زه چېرته هم انشاءالله نه کوم، داسې اقدام او داسې خبره به زه چېرته هم نه کوم۔ یہاں پر آپ نے کہا کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نبی ہونے کا کیا ہے، اس سے میں انکار کرتا ہوں اور میں نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ باتیں کبھی نہ کروں گا اور ایسے اقدام اور باتیں کبھی نہ کروں گا، کبھی نہ کروں گا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ تشریح نبوت کا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے تو اپنے نبی ہونے کا بھی انکار کر دیا یا وہاں پر کہ میں آج معافی مانگتا ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے نبی ہونے کا، میں اس کا انکار کرتا ہوں آج۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہمارے پنجابی میں نسیم صاحب اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تھوک کا چٹنا۔ آپ کا تو آپ کہتے ہیں فرشتہ آپ کو بتاتا ہے نا؟ ہاں جی، تو فرشتہ نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے کب انکار کیا ہے نبوت کسی کا؟ آپ نے انکار تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہے تو فرشتے نے کیا بتایا آپ کو؟ اچھا، اپنا طاہر صاحب آپ پہ آئیں گے وہ بھی بتا دیں گے کیا بتایا ہے۔ آپ پہلے اپنے موضوع سے سننا نہ ہٹیں، جو آپ نے مثلا حلف اٹھائے ہیں، دستخط کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ پہلے کلیئرنس کریں نا۔ آپ نے اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ نے کیسے اپنی نبوت کا انکار، آپ تو اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ فرشتہ باتیں کرتا ہے، سب کچھ سکھاتا ہے، تو فرشتہ نے کیا سکھایا ہے؟ میرے بارے میں کیا سکھایا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے کلیئرنس تو کریں نا کہ آپ نے اس وقت کیسے، کیوں یہ سارا انکار کیا؟ آج کیوں دوبارہ اس چیز کو دہرا رہے ہیں؟ یا تو آپ کو وہ کہہ دیا، اس کے شروع میں نے کہہ دیا تھا، میرا دماغ نہیں ٹھیک تھا۔ آج ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کس سے علاج کروایا؟ خود ہی ہو گیا۔ خود ہی تو نہیں ہوتا، اگر مثلا ایک دفعہ خراب ہو تو دوبارہ خود تو نہیں ہوتا۔ آپ کو مثلا اس دن شیخ صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ نے کہا تھا مثلا میرا پہلے خراب تھا اب ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ بیٹا ابھی بھی آپ کا خراب ہی ہے۔ شیخ صاحب نے یہی کہا تھا نا؟ وہ تو اس کا خیال ہوگا نا۔ آپ کا اپنا بھی تو خیال یہی ہے نا کہ ایک بار دماغ خراب تھا اب ٹھیک ہو گیا۔ یا تو آپ ہمیں قرآن سے بتائیں کہ کسی نبی نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے واپس لیا ہو اور دوبارہ پھر دعویٰ کیا ہو، اس چیز کا آپ ثبوت دیں۔
कुरान में तो बहुत नबियों का जिक्र है भी नहीं तो मतलब वो मजमे में जो बंदा आपको कह रहा है कि आपने टट्टी करके खाई है, आपने वाकयातन वही काम कर रहे हैं। नहीं, आप पर तो शैतान उतरते हैं, आप कहते हैं फरिश्ता आपको बताते हैं, आपको साथ तो शैतान है। आप अपने मौजू से तो ना हटे, अपने मौजू को पहले क्लियरेंस करें, फिर मेरा मौजू भी शुरू होगा। जी ताहिर साहब, आप अपनी वो जो बात है वदूद साहब, आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ना कब ये आपने ना ये इंटरव्यू वहाँ उनको दिया था, आपने जो माफी मांगी है, तो पहले आपने ना अहमदियत को वहाँ छोड़ा है। आप कहते हैं कि मैं मुसलमान होता हूँ, वहाँ CNG कोई तो मुसलमान पहले भी था, मैंने उस वक्त भी कहा, अब भी वो ये क्या है कि यहाँ मस्जिद तो मुसलमान नहीं होता। नहीं, वहाँ आपने कहा है कि मैं साहब को आप काफिर मानते हैं। नहीं, उस वक्त तो आपने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वहाँ CNG जो पंप था वहाँ आपने ये इसी वीडियो में कहा है कि मैं सब लोगों से माफी मांगता हूँ, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को आपने नाउज़ुबिल्लाह काफिर और दजाल कहा है कि मैं उनके अकायद को छोड़ता हूँ। और तो शरीयत में बात है। तो आप ये बताएं कि जो वो वाजिद साहब बात कर रहे थे कि इन्होंने मुसलमान समझ के इसको बेटी दी थी, अहमदी समझ के, हमें नहीं पता था कि कादियानी ये कादियानी है। तो आप नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यानी कि उस वक्त आप को वो कह रहे थे कि ये कादियानी हैं, इनको कुरान करीम की इस्तिलाह में मुर्तद कहते हैं। तो आपने कहा वहाँ आपने ये हलफ उठा के कह दिया कि मैं आज मुसलमान होता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आज मुसलमान होता हूँ, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान रहूंगा। तो बाकी जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ आपने जो कहा है, वो उस वक्त आपने क्या उनके खौफ से कहा था? वो कहते हैं शरीयत नबी, पर शरीयत नबी तो उन्होंने खुद लिखा है कि वो काफिर दज्जाल होता है। देखें, आप एक बहुत बड़ा इस वक्त दजल कर रहे हैं। वो यूट्यूब के ऊपर मेरे पास ट्रांसलेशन है और लोग इसको सुनेंगे और वो सुन भी रहे हैं यूट्यूब के अंदर, उनको सबको पता चल गया इस बात का कि आपने क्या बातें की, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। तो आप क्लियर ही कह दें जो है वो उस वीडियो में। ये बताएं मुझे नसीम साहब जनाब, अब ये बताए 2011 में हजरत इमाम मेहदी मिर्जा गुलाम अहमद ने कोई शहीदी नबूवत का दावा किया हुआ था, जिसको आपने नौज़ो बिल्ला सारे गलत लफ्ज बोले हैं। वो समझ रहे थे, अब तो समझ ही नहीं रहे। वो लोग समझ रहे थे कि वो शरीयत नबी, जो लोग समझते हैं वो आप नहीं समझते, जो आप समझते हैं वो लोग नहीं समझते। ये तो दिमाग खराब होने वाली बात है ना। नहीं देखें ताहिर साहब, आप कहते हैं लोग समझते हैं, जहाँ पे मतलब नहीं होता वो वहाँ पे आप कहते हैं आप लोग नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ। ताहिर साहब, आपने पहले जब अपनी बेगम को कहा ना, अपनी बीवी को, कि मेरे ऊपर ईमान लाओ, तो उसने उस मुफ्ती वाजिद को फोन किया है कि ये मेरा जो खामद है ये मुझे कहता है कि नबी मानो। तो फिर जब वो आ गए हैं आपके पास तो उन्होंने आपको समझाया, तो आपने फिर इनकार कर दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, मुसलमान होता हूँ। अच्छा, फिर ऐसे करें जी, वो मुफ्ती वाजिद को फोन कर दे, वो सब कुछ बता देगा। उधर जो है तो मैं उसके सामने मैंने कहा है कि ये बातें हैं। उसने एक ने पिस्तौल भी मेरे सर पर रखी। अच्छा। मैंने अपनी बात को नहीं बदली और मुफ्ती वाजिद उसका गवाह है। अगर मैं डरता तो मैं पिस्तौल तो मेरे सर पर थी उस वक्त, तो पिस्तौल आपने देखी कहाँ पर? नहीं, ये इस YouTube के ऊपर आप इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। आपने वहां खुद खड़े होके ये इकरार किया है। एक ही बात दोहराते हैं, झूठ बोल रहे और कुछ नहीं कहते। देखें, आपको फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हैं, कुर्बे क़यामत के नजदीक आएंगे और मैं मुसलमान होता हूँ आज। तो ये जो बातें आपने की हैं, कि मैं मुसलमान होता हूँ, मैं कहा मैं मुसलमान हूँ और रहूंगा। हाँ, और ये बात है कि वो मुफ्ती वाजिद से आप फोन करके पूछ रहे कि जब वो एक पिस्तौल मेरे सर पे रखी, मैंने बात बदली थी। तो आप जब अल्लाह ताला का एक हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम जो थे, उनको तो यहूदी जब सलीब पर ले गए थे तो उन्होंने तो नहीं इन बातों से ऐसे इनकार किया था जैसे आपने कर दिया फौरन ही। वो तो सलीब पर जाने के लिए भी तैयार हो गए थे। हजरत इब्राहिम आग में उन्होंने डाल दिया। तो उसने जब पिस्तौल मेरे सर पे रखी, मैंने बात बदली थी, मैंने इनकार किया था। तो बिल्कुल आपने तो वहाँ इकरार कर दिया, इतना बड़ा हलफ उठाया कि मैं उधर जब मैं उस वाक़े का कह रहा हूँ, इससे पहले के वाक़े का वाक़या तो इसमें हो ही नहीं रहा ना।
पहले क्या वाकया हुआ उसका किसी को क्या लेना देना? क्या लेना देना? आप वीडियो में लोगों के सामने उसको फोन करो, पूछ लो। जी मैंने बिल्कुल, आपकी तहकीक वहाँ से हो रही है। आप लोगों के सामने इकरार कर रहे हैं, अल्लाह ताला है। जी बिल्कुल, मुफ्ती वाजिद साहब तो खड़े होके आपसे इकरार नहीं ले रहे, आप क्या उनके पीछे पड़ रहे हैं? आप अभी तो कह रहे थे कि मेरा दिमाग उस वक्त खराब था, मैंने ये बातें की हैं, आप मान भी गए हैं कि मैंने की हैं ये बातें। आप कह रहे हैं ना कि बात बदला है, तो मैंने कहा उससे पूछ लो, मैंने बात बदला है वो कि जब उसने मेरे सर पे पिस्तौल रखा था, उसे पूछ लो, वो जिंदा है, गवाह है। नहीं, ये तो आप पहले की बात कर रहे हैं, कोई उस वक्त जो वीडियो में बात है, ये में तो आपने इकरार किया है कि नहीं किया? मैं तो वही कह रहा हूँ, वो शरीयती नबी का बात कर रहा हूँ। तो आपने अपनी नबूवत का भी वहाँ इनकार किया है। हजरत इमाम मेहदी मिर्जा गुलाम अहमद का शरीयती नबी होने का दावा था, जो आपने इनकार किया है। उनका तो ये दावा ही नहीं था शरीयत होने वाले का। उनका यही दावा समझते हैं कि वो शरीयती नबी है, और किसी किस्म नहीं ताहिर साहब, एक भी बंदा मुझे भाई वदूद आप ना थोड़ी देर के लिए खामोश रहें। ये ताहिर साहब, उनमें से कोई भी ये बंदा नहीं कहता कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने कोई शरीयत लाने वाला का दावा किया है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने दावा उम्मती होने का किया है, वो तो ये कहते हैं। उन्होंने दावा किसका किया? उम्मती नबी होने का दावा किया है। नहीं, वो शरीयती समझते हैं। नहीं समझते, एक भी मुझे बंदा शरीयती समझते हैं। वो कहते हैं कि वो नया मजहब लाए, वो नया शरीयत लाए और ये सब कुछ। देखें इस वीडियो में वो ये नहीं बात कर रहे, आपने अपनी नबूवत का भी वहाँ इनकार किया कि मैं नहीं हूँ, मुझसे जो हुआ मैं गलती की। बता दिए सब कुछ। अब तो ये पेशन गोई को भी कुछ नहीं समझते, कुछ इल्म भी नहीं है आपके पास। तो आप जम्बा को कुछ वो नहीं है। देखें अपने लिए जो बना दिए जक्की गुलाम के साथ लगा रहता है। देखें हजरत तो कहाँ पर है वो? तो ये सारी पेशन गोई एक ही बंदे के बारे में है, इसमें दो वो नहीं है। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उसने अपने लिए वो बना दिया जगह की ये जक्की गुलाम है। जी ठीक है। अब ताहिर साहब, आप इस अपनी बात से उधर दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, हम अब पेशगोई की तरफ ही चले आ जाते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता अब तक कि इस पेशगोई के अंदर एक वजूद है या दो हैं, और अगर आप अपने आप को कहते हैं, तो हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से खबर पाकर पेशगोई की थी कि मैं, उनके जो दावा है उनके बाद वो उन्होंने पेशगोई की थी कि सूरज और चांद को ग्रहण लगेगा, जिस तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माना में 1894 में लगा था। तो उनकी पेशगोई के मुताबिक और 2003 में लग गया, तो वो तो सच्चे साबित हो जाते हैं। उनके पास जमीनी और आसमानी निशान भी मौजूद हैं। और उनका क्या दावा है कि मसले माऊद है? तो मसले माऊद फिर वो क्या नबूवत का वो दावा नहीं करता? मुझे नबूवत मेरा दावा है, मुजद्दिद का दावा है। तो फिर मैं जब सदी का मुजद्दिद, तो वो क्या हो गया? उसको तो जगह नहीं है, तो वो किस चीज का वो दावा कर रहे हैं और उसको कोई क्या माने? देखें उनका जो हजरत मुस्लिम मऊद, ये जो पेशगोई है मुस्लिम मऊद की, या ज़की गुलाम मसीह ज़मां कह लें, असल अल्फाज तो अल्लाह ताला के ज़की गुलाम है, ज़की गुलाम मसीह ज़मां की ये पेशगोई है। बाकी ये अल्फाज इल्हामी हैं, और मुस्लिम मऊद हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको नाम दिया है, ये इल्हामी नहीं है, हजूर अलैहिस्सलाम ने नाम दिया मुस्लिम मऊद का। तो उसमें एक ही पेशगोई है, इसमें ये क्या वो डाल दिया है कि अचार बना दिया है कि वो जो है तो कुछ ज़की गुलाम उससे निकालते हैं, कुछ क्या निकालते हैं। ये एक ही पेशगोई है, सारे उसमें आते हैं और एक ही बंदे के बारे में, इसमें और कुछ नहीं है। नहीं, उन्होंने तो जब पेशगोई ये करता है बंदा, उसकी अगर पेशगोई पूरी हो जाती है तो सच्चा तो वो होता है ना। मसलन उन्होंने जब पेशगोई की तो उनके दावे के बाद वैसा ही कुसूफ का वाकया रूनमा हो जाता है। यानी वो 13 रमजान बमुताबिक 8 नवंबर 2003 बरोज हफ्ता चांद ग्रहण हुआ, और उसी माह श्याम की 28 तारीख को बमुताबिक 23 नवंबर 2003 बरोज अतवार को सूरज ग्रहण हो जाता है। और आ हज़रत सल्लम के फरमान के मुताबिक ये रूनुमा होने वाला कुसूफ का निशान हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील है। अच्छा, तो फिर वो डरता क्यों है? मेरे सामने आता क्यों नहीं है? मैं जब उसको फोन करता हूँ तो बात भी नहीं करता।
मैं अगर ऐसे उसका दावा है तो मेरे सामने आए, मेरे साथ बात करें। देखें, हम उनके अदना पैरोकार आपके साथ बात कर रहे हैं, आप तो हमारा ही नहीं मुकाबला कर पा रहे, तो उनका क्या करेंगे? आपको तो कुछ इलम ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ? क्यों इलम नहीं है? कुछ इलम नहीं है, वो ऐसे ही लगा है कि जकी गुलाम उसको क्यों निकाल रहे हो अल्फाज उससे? कभी कोई निकालता है, कभी डालते है उसमें अल्फाज, ये क्या बात है? देखें आप, तो एक ही पेशनगोई पूरी कंप्लीट वो है, देखें ये नहीं है कि उससे कुछ निकालो और कुछ उसमें डालो और कुछ निकालो। तो आप, यही तो हम आपसे पूछे हैं नसीम साहब, आप कभी इनकार करते हैं, कभी हाँ करते हैं। असल में बात आप हमें नहीं बता रहे कि आप एक बार 2011 में आप अपनी नबूवत का इनकार कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं मैं नबी हूँ, ये कैसे हो गया? जैसे आप हमें पूछ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं? देखें मैं ना कुछ नहीं समझ सकते आप, ये तो शैतान आपके साथ है और कहते ये फरिश्ता मुझे सब कुछ बताता है, आपके साथ शैतान है, वो बताता है सब कुछ। देखें मैं ना, ये हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वुस्त दिसंबर 1983 को इल्हाम करके ये बताया, वो मैं इल्हाम हजूर अलैहिस्सलाम का पढ़ने लगा हूँ। असल चीज ये है कि जो असल पेशगोई का मिसदाक होता है उसको अल्लाह ताला भी मुखातब करके फरमाता है कि तू वो शख्स है। अब उस पेशगोई के अंदर ना हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पेशगोई में ये अल्फाज हैं पेशगोई के सो तुझे बिशारत हो कि एक वजी पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, फुल स्टॉप, एक जक्की गुलाम लड़का ब्रैकेट में लड़का तुझे मिलेगा। अब वहां पर एक वजी पाक लड़का तो बशीर अहमद अव्वल रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो कि मेहमान की तरह आके रुखसत होके चले गए। अच्छा, दूसरा उस पेशगोई के अंदर वजूद है जक्की गुलाम। अब सुनिएगा कि हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम को भी वुस्त दिसंबर 1983 को अल्लाह ताला ने बरोज जुमा अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया। सुनिएगा क्या फरमाया अल्लाह ने। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी किताब, ये किताब है हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम की, ये नोट कर लें, इसका नाम है आमदने ईद मुबारक बादत। ईद तो है चाहे करो या ना करो। इसके सफ़ा नंबर 232 पर ये हजूर अलैहिस्सलाम का इल्हाम मौजूद है। हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अब्दुल गफ्फार, तू ही वो निशाने रहमत है, वो जक्की गुलाम है जिसका मैंने अपने बरगज़िदा बंदे हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजा में उसे देने का वादा किया था। तो आपको तो अल्लाह ताला ने ये इल्हाम ही नहीं किया कि आप वो जक्की गुलाम है। नहीं तो ये उसको कैसे पता कि अल्लाह ने उसको कहा है? क्या पता कि वो शैतान ने कहा? ये अल्लाह ताला का कलाम है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मुझे इल्हाम किया है। इल्हाम के जरिए अल्लाह ताला ने उनको बताया है, और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला ने, इल्हाम तो शैतानी भी होते हैं ना। जी बिल्कुल। उसको कैसे पता है कि अल्लाह की तरफ से है? अच्छा, मैं ये अर्ज करता चलूं कि आप जो मर्जी इल्जाम लगाते जाएं, अब बात तो सुने ना मेरी मुकम्मल। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इल्मी इस पेशगोई के अंदर जो अल्फाज हैं वो 3 को 4 करने वाला होगा, उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। इसके मतलब अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी दिया, और उन्होंने एक इल्हामी किताब लिखी है, पूरी की पूरी इल्हामी किताब है, यानी अल्लाह के कलाम पर मुश्तमिल है। उसका नाम है नेकी खुदा है, वर्चू इज गॉड। तो वर्चू इज गॉड का इल्हाम हुआ। उसके बाद ये अल्लाह ताला ने सारे बेशुमार इल्हाम किए, कसरत मुकालमा मुखातबा हुआ है, और उसके नतीजा में एक किताब फिर उन्होंने अपनी छाया की है। तो ये उनका जो नजरिया उसमें उन्होंने लिखा है, ये एक सच्चाई की दलील है उनकी, यानी कि उसमें अल्लाह ताला ने जो उनको इल्म दिया वो पूरी दुनिया के फलसफे को झुटलाता है। और ये वो तो उन्होंने तो सिर्फ वो लिखा है ना कि 2 लफ्ज का के 3 वर्चू इज गॉड। जी जी सही है ना। और मुझे तो अल्लाह ने सिखाया है कि मैंने तकरीबन 30 वर्ड्स लिखे हैं, तो फिर उसका क्या करेंगे? वो मैंने ईमेल में भेजी, आपने पढ़े होंगे। नहीं, कोई नहीं, हमारे तक कोई आपके 30 वर्ड या लफ्ज नहीं पहुंचे। मैं ये कहता हूं कि किसी का तो मेरे फेसबुक उस पर चले जाए, उस पर सामने लगा हुआ है वो इल्हामी नॉलेज, उस पर सारा 30 वर्ड्स के, तो 30 किताबें तो कम से कम बन सकती है। फिर क्या कहेंगे? नहीं, ये किताब जो है ये आप ने पढ़ी है, वर्चू इज गॉड किताब, जो हुजूर की इल्हामी किताब है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो उसने एक किताब लिखी है, मैं 30 किताबें लिख दूंगा और इस तरह। तो लिखी तो नहीं ना अभी तक आपने?
नहीं तो मैंने वो लिखा हुआ है ना, वो उसका वो जो वो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, उस फेसबुक उस पर पड़े हैं वो टाइमलाइन पर। जनाब 2011 में तो आपने सारे नबियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप मुझे बोलते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हुजूर आपने 2011 में बात कर सकती है। देखें सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपने 2011 में शैतान का रिकॉर्ड तोड़ना है। ताहिर नसीम साहब, आप इस पेशगोई के हरगज मिस्ताक नहीं हो सकते, इसलिए कि आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है 2011 में हजरत इमाम महदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को। न निकाले इज्जत की गुलाम और ये और वो, ये सारा एक ही पेशन गोई है। ये क्यों ये निकालते हैं? ये इसको इतना ही गुलामी का शौक है। मैं मसीह जमान हूँ, मेरा बन जाए गुलाम। हाँ, तो वो तो गुलामी का दावा इसीलिए करते हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने भी गुलामी का ही दावा किया था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। और हजरत मैं मसीह जमान हूँ, इसको गुलामी का शौक है तो मेरा की गुलाम बन जाए। तो आप क्यों नहीं गुलाम बनते? आके आप अपनी जो जिंदगी है इसको संवार लें। मैं तो जो तो सारा पेशंगोई को मानता हूँ। देखें, अगर आप उनको इमाम जमान कहते हैं तो आपको चाहिए कि उनकी बैत भी करें, फिर आप अपनी जिंदगी क्यों जाया कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप उनको इमाम जमान कहते भी हैं, पहले आपने तस्दीक भी की है कि उन्होंने जो किताबों में लिखा है वो सब सचमुच लिखा है, जो लिखा है सच सच लिखा है। किसको इमाम जमान तस्लीम करता हूँ? आप हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक आपने कहा है कि जो उन्होंने लिखा है वो सच है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। आपका दिमाग मेरे ख्याल में काम छोड़ दिया है। मेरे मैं कहता हूँ मैं हूँ ईसादी का मुजद्दिद और मसीह का मसीह, और आप कह रहे हैं उसको। मैं कह रहा हूँ वो मैं उसको इतना गुलामी का शौक है तो मैं मसीह जमान हूँ, फिर मेरा बन जाए वो। देखें, आज तो आप मेरे गुलाम बने हुए हैं, मेरे ही नहीं मुकाबला कर पा रहे, तो उनका क्या करेंगे? क्या मुकाबला? आप तो कुछ समझ ही नहीं है ना, पेशन कोई की ना कुछ की, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं झूठे ये नहीं। देखें, झूठे तो आपने खुद ही तस्लीम कर लिया है उस वीडियो के अंदर कि मैं झूठा हूँ, मैं इनकार करता हूँ। नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात है, ये पेशन कोई आप नहीं समझ सकते। उस जंबा ने अपने लिए जगह बना दिया क्योंकि महदी अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई थी, वो समझा ये दो के बारे में, तो ये जो इसलिए अपने लिए वो बना दिया है उसमें जगह, और अपने आप को ले गए कि ये इज्जत की गुलाम है और ये वो है। अगर इतना ही वो आप उसको सच्चा मानते तो मुकाबले पे निकल आए, तो फिर मुबाइला करें। मोबाइला बड़ी जल्दी आप भागते हैं मोबाइले की तरफ। मोबाइला लफ्ज के मायने क्या है? मोबाइले के लफ्ज के मायने बताएं मुझे। डरते क्यों है? नहीं, मोबाइला लफ्ज के मायने क्या है ये बता दें जरा। डरते क्यों है? आप ये बताएं कि मोबाइला किसे कहते हैं? आपका जमात क्यों फिर डरता है? निकल आए। देखें, हम तो शेरों की तरह मैदान में बैठे हुए हैं, आप मोबाइला लफ्ज के मायने बताएं। नसीम साहब बोलो। हाँ जी, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मेरे पर ईमान लाएगा वो दूसरे के सामने मतलब दोनों फरीक सामने बैठ कर जहर का प्याला पिएंगे, जिसका ईमान पुख्ता होगा उसको कुछ नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ बैठ के पी सकते हैं? अब जो आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की आए? आपने तो कहा टिकट भेजूंगा, भेजो। मैंने कहा पे क्या आप दजल क्यों कर रहे हैं? अपनी वीडियो दोबारा सुने। ये जो बेटे आपके साथ इसने कहा कि नहीं वो बताओ ना। आप दजल कर रहे हैं, अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुने। अरे आपने बताया था कि नहीं कि चौधरी ने कहा कि वो टिकट भेजूंगा। मैंने सुनता इसका। उन्होंने हरगज नहीं कहा कि मैं टिकट भेजूंगा, आपने यहाँ आना था। टिकट देगा ना वन वे का? नहीं, जब आप आ गए यहाँ पर आप अपनी बात कर रहे हैं। आप वैसे ही हैं जैसे कुरान मजीद में खुदा ताला ने कहा ना कि फरौन अपने जादूगर इकट्ठे करेगा, तो आप भी उन्हीं जादूगरों में से एक जादूगर है ना। वो क्या आप कह रहे हैं कि अभी वो जादू दिखाऊंगा जहर पी के? देखें, आप ये दावा रखते हैं नसीम साहब, आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला के जो सच्चे बंदे होते हैं वो उनकी तो जबान पर इस तरह के लफ्ज आया ही नहीं करते जिस तरह के आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या मैंने सर इस्तेमाल किया है? ये जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। आप लफ्जों में दजल कर रहे हैं, और जो लफ्जों में दजल कर रहे हैं, का क्या मतलब? मैं तो साफ कह रहा हूँ ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप वो जो फरिश्ता आपको सब कुछ सिखाता है, और ये जहाज भी उड़ा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह आए, मैंने तो आपको फरिश्ता आप आए। अगर आप ईसा इब्ने मरियम होने का दावा नबीउल्लाह रखते हैं तो हमें स्लीप पर चढ़ के जिंदा उतर के दिखाएं, दुनिया का भी आंखें खुल जाए कि वाकईतन ये वही है। क्या आपके लिए स्लीप बनवाऊं, चढ़ के दिखा सकते हैं? आप उस पर खुद चढ़ जाए, क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा। क्यों क्यों? ईसाई आप रखते हैं कि मैं रख रहा हूं? अगर आप मतलब स्लीप पर चढ़कर जिंदा उतर के दिखा देंगे तो सारी दुनिया आप पर ईमान ले आएगी। यह तो वो उनकी बात है कि कहते हैं कि आसमान पे चढ़ जाओ फिर हम ईमान ले आएंगे। मैं आपको स्लीप पर चढ़ने की बात कर रहा हूँ, आप आसमान पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। ये तो दजल हो गया। आप मुझे करा देता हूँ। ताहिर साहब ये ताहिर साहब ये आपने दलील नहीं दी। आप ना मैं अब एक हजूर अलैहिस्सलाम का इक्तबास पढ़ने लगा हूँ, सुनिएगा हजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। ये मलफूजात जो है ये जिल्द पंजम है और इसका सफ़ा नंबर 323 है 363 है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान का तो ये काम है कि अपने तमाम कुआ खुदा ताला की राह में खर्च कर डाले और खुदा के तमाम हुक्मों पर अमल करे, तब वो खुदा ताला का वली होगा। यानी दलील के कोई दावा नहीं माना जा सकता, बगैर दलील के कोई दावा नहीं माना जा सकता, बगैर दलील के तो पैगंबर भी नहीं माने जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से अर्ज की थी कि मुझे कोई दलील दी जावे जो कि मैं दुनिया के आगे पेश करूं, तो आप अपनी दलील तो पेश करते नहीं और ना ही आप अपनी इस जो 20 फरवरी 1886 की पेश गोई है इसके मतलब आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। तो आप ये इल्म है इस पेशन गोई के बारे में कि ये मेरे बारे में है, और ये सारी पेशन गोई मेरे बारे में है। इसमें ये नहीं है कि कुछ अल्फाज निकाल के ज़की गुलाम फिर उसमें कुछ अल्फाज और निकाले, कि ये सारी एक ही पेशन गोई है मुकम्मल। बस इसको टुकड़े नहीं करना। कौन टुकड़े कर रहा है? टुकड़े तो आप कर रहे हैं इस वक्त। कर रहे हैं, कभी अल्फाज निकालते हैं कभी डालते हैं उसमें। देखें आप टुकड़े भी करते हैं और अल्फाज में निकालते हैं और कह रहे हैं कि ये एक है, टुकड़े तो आप कर रहे हैं, जबकि पेशगोई के मुतल्लिक टुकड़े करते हैं, कहते हैं ये एक जो है तो बशीर अहमद के बारे में, दूसरा जंबा के बारे में, ये टुकड़े नहीं हुए। नसीम साहब कुछ शर्म करें, आप इतने बड़े झूठ बांध रहे हैं, कुछ शर्म करें, अल्लाह ताला का खौफ करें। आप इतने बड़े झूठ बोलते हैं, आपको इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए, इतना दजल नहीं करना चाहिए। आप दावा रखते हैं, आप कुछ समझ नहीं है तो फिर बातें क्यों करते हैं? ये दीन की बात है, कुछ समझ आपको नहीं है। देखें दीन का इल्म आपको होता तो आप इधर ना होते, आज ये दावा ना कर बैठते, क्योंकि आपको दीन का पता ही नहीं है। मुझे इल्म है, आपको कुछ भी मैंने आपसे पूछा था कि मालिक मैंने सूरत फातिहा का तर्जमा आपसे पूछा था, मालिक यौम दीन, उसका आपको तर्जमा नहीं आया था। तो क्यों नहीं आया था? मैंने कहा कि वो मालिक के दिन का, वो आखिरी दिन का। नऊज बिल्ला बाकी दिनों का वो खुदा नहीं है। तो ये तर्जुमा आप मांग रहे हैं ना? तर्जुमा मैं कह रहा हूँ ना कि ये तर्जुमा जो आप कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला आखिरी दिन का मालिक है, ये तर्जुमा इस तरह नहीं बनता। इसमें तो मेरा सवाल है फिर नऊज बिल्ला अल्लाह बाकी दिनों का मालिक नहीं है। तो इसमें कहाँ लिखा है कि वो नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो ये लिखा है कि जो तर्जुमा है वो मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। नहीं, अल्लाह के आगे वाली आयत के क्या कह रही है? या कराबुदो या करस्ताइन, तो क्या उसका क्या मानी है? हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और आप अल्लाह की इबादत करते हैं? तो आप किसकी करते हैं? नहीं, आप अल्लाह की, मेरा सवाल है, आप आगे से आप अल्लाह की इबादत करते हैं? ये बहुत ही कैसे सवाल पूछते हैं बच्चों की तरह। हाँ जी, उससे आगे की आयत क्या है? ये मुझसे क्या सूरह फातिहा क्यों पूछ रहे हैं? या तो आपको भाई आप नबीउल्लाह है, हमने तो आपसे इल्म सीखना है ना। तो ये तो आगे की आयत क्या है? या कनाबुदो या कनस्ताइन, हाँ जी, क्या मांगते हैं।
तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारी इबादत करते हैं, तुम ही से मदद मांगते हैं। हाँ जी, उससे आगे सिरातुल मुस्तकीम के हमें सीधी राह पर चलाओ। अगर आप उसकी इबादत करते हैं तो फिर सीधी राह कौन सी मांग रहे हैं? सीधी राह पर तो इंसान हर वक्त जरूरत होती है ना। जी, अगर आप पहले ही उसकी इबादत कर रहे हैं और आप तो फिर पहले ही सीधी रास्ते पे हो। अगर आप ये तर्जमा करते हो तो आप तो पहले सीधे रास्ते पे हो, फिर उससे सीधा रास्ता कौन सा मांग रहे हो? तो सीधे रास्ता पर कायम रखना है ना। आप पहले कह रहे हो कि आप मैं आप मसलन खुदा की इबादत कर रहा हूँ और फिर उससे कह रहे हो कि मैं मुझे सीधा रास्ता दिखा। हाँ सही है। ये तो बात उल्ट हो गई। अगर आप पहले सीधे रास्ते पे हो तो कौन सा रास्ता पूछ रहे हो फिर? ये आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीधी राह। अगर आप पहले ही सीधे रास्ते पे हो, क्या चीज? अगर एक इंसान पहले एक मोटरवे पे है तो फिर गाड़ी खड़ी करके क्यों पूछता है कि मैंने इधर जाना है? ये मोटरवे नहीं है ना। देखिए इंसान को तो हर वक्त अल्लाह की रास्ते का मतलब क्या है? अगर आप पहले ही सीधे रास्ते पे इबादत कर रहे हैं तो आप तो फिर सीधे रास्ते पे है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों पढ़ रहे थे? वो तो इसलिए पढ़ते थे कि वो तो कहते थे कि उनकी तो हदीसें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कहते हैं कि अगर बख्शने में खुदा हिसाब किताब में आए तो शायद मैं भी ना बख्शा जाऊं। हाँ तो सही है। तो इसी तरह मेरे वो क्यों इतनी बातें करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, वो भी तो सीधी राह पढ़ते हैं, तो फिर वो क्यों इसका तिलावत करते थे? वो तो आईना थे, वो आईना थे। उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखलाना था। वो हमारे इमाम थे। उन्होंने बदूर साहब एक मिनट, ये ताहिर नसीम साहब जो है ना, ये जो है मौजू से बात हट गई है, मौजू से ना हटे। क्यों नहीं दे सकता? आपको दे ही रहा हूँ जवाब। क्या जवाब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीधी राह करते हैं ना, वो फिर क्यों अल्लाह से ये मांग रहे थे कि सीधी राह पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो आईना थे। आईने में वो हमें बता रहे थे कि तुम ऐसे दुआएं मांगा करो खुदा से। बदूर साहब वो खुद वो ये नहीं पढ़ते थे नमाज में। देखें बदूर साहब एक मिनट स्टॉप करें, स्टॉप। तो फिर वो क्यों अल्लाह से ये मांग रहे थे? बदूर साहब स्टॉप करें, ये ना मौजू चेंज हो गया, क्योंकि हम असल टॉपिक की तरफ ही बात करेंगे। हाँ तो बात सकते हैं, उसका जवाब नहीं है आपके पास। हाँ नहीं, चूंकि आपको इस बात पर जो हम कर रहे हैं दूसरी तरफ बात चली है। ये तो सिर्फ उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि मालिक यौम दीन का मतलब क्या है, तो आपने जो तर्जमा किया था मैंने कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तो जो मैंने तर्जमा किया था आपने ताहिर साहब उस दिन आपकी मर्जी है कि आप इत्तेफाक करें कि ना करें, तो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं, मैंने जो किया था आपने इत्तेफाक किया था उस दिन कि ये आपका तर्जमा दुरुस्त है, किया था ना आपने? तर्जुमा किया, तर्जुमा तो वही है कि मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इससे तो दूसरा तर्जुमा तो कोई नहीं कर सकता अरबी का। तो ताहिर साहब ये जो पेशगोई है 20 फरवरी 1886 की, सही है। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा, इसके मतलब आप अपना वो बताएं कौन सा इल्म आपको अल्लाह ने दिया। ये ना कहें हमारे ऊपर तो आप इल्जाम लगाते जा रहे हैं ना, आप अपना बताएं कि क्या इल्म है आपके पास इस पेशगोई के मतलब। मुझे बहुत इल्म दिया है अल्लाह ने। ये कहते जा रहे हैं कि बहुत दिया है, बताएं तो सही कोई एक आधा इल्म कट के बाहर रखिए। ये मैं बता रहा हूँ ना कि मैं देखिए मैं सूरह की जो तफसीर करता हूँ वो जो है तो कोई नहीं कर सकता और मेरे मुकाबले में उस तरह। किस चीज की तफसीर? जिस सूरत की मैं करता हूँ कुरान शरीफ की। देखें कुरान मजीद की तफसीर तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हकम और अदल एक सदी पहले कर गए हैं, आप उनसे बड़े होने की ना कोशिश करें। तो नहीं, उन्होंने तो सारी कुरान की तो नहीं की ना। तो ये आप फिर तफसीर में जब चले जाएंगे, मैं पेशगोई 20 फरवरी 1886 का ही पूछ रहा हूँ, आपको वो नहीं आ रही तो आप कुरान मजीद की क्या तफसीर तो वही कह रहा हूँ ना, वही के जो आप कह रहे तो इल्म का बारे में कह रहा हूँ ना।
उन्होंने तो सारे कुरान की तो नहीं की ना तफसीर। हाँ, तो आप तो उसकी तफसीर जो पेश गोई की है उसको तो आप कहते हैं कि इसमें एक वजूद है, जबकि जो आप खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो इल्हाम होता है ना, मुल्हम अपने इल्हाम को अब ज्यादा समझता है। देखें, उन्होंने खुद लिखा है कि इज्तिहादी गलती उनसे हुई थी। नहीं, कहाँ लिखा है? मैं तो हवाला मांग रहा हूँ, उस दिन भी मैंने मांगा। जब वो बशीर अहमद के बारे में लिखा था, फिर वो जो है तो लोगों ने शोर वो कर दिया क्योंकि वो फोत हो गए थे, तो उन्होंने लिखा है ये सब। मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहाँ लिखा था कि वो मुस्लिम मऊद है? पहले बच्चे के मतलब हजूर ने कहाँ लिखा था कि ये मेरा बेटा मुस्लिम मऊद है? वो पेश गोई के अल्फाज निकाल के दिखा दे मुझे कहीं से, तहरीर भी देना जहाँ पे मुस्लिम मऊद ने ये लिखा है कि ये मुझसे इज्तिहादी गलती हुई है, वो भी हवाला देना। वो आपके पास वो बुक्स है ना, उनको निकालें, लिखाएं, सफा नंबर क्या है? तो आप ये नहीं मानते कि उन्होंने ये लिखा है? मैं कहता हूं कि आप अपने पास से बात करें, हजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं लिखा। और हजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर जब सारा लोगों ने शोर शुरू कर दिया था, जब बशीर अहमद फोत हो गए थे, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो है तो गलती तो हो सकती है, गलती। हाँ, तो उस वक्त फिर हजूर ने क्या लिखा? एक मिनट वदूद साहब, उस वक्त फिर जब हजूर ने क्या लिखा? यही लिखा था ना कि गलती हो सकती है, इज्तिहादी गलती। हजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ लिखा उसके लिए फिर आप मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने वो पढ़ा है, 2-3 मरतबा आपके सामने तहरीर पढ़ी है, तो उसको आप मानते नहीं। वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम पर बस उसकी पढ़ने जरूरत नहीं है, मैं इसको समझ। हाँ, तो फिर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इसका इल्म दिया है, देखिए ये भी मेरी दलील है सच्चाई की कि अल्लाह ने इस पेशन गोई की इल्म दिए कि ये सिर्फ एक ही बंदे के बारे में, एक इंसान के बारे में। तो अल्लाह देखें, अल्लाह कह रहा है कि इसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है उस पेशगोई के अंदर 2 वजूद है। तो आप कह रहे हैं एक है, आप तो अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं। वो इल्हाम बताएं। मैं इल्हाम अभी पढ़ देता हूँ। 1 मिनट आमर साहब, 1 मिनट। एक बात और मैं आपसे पूछनी चाहता हूँ, ताहिर नसीम साहब। बोले बोले। आपका दावा कब का है? मेरा दावा तो मतलब किसको मैंने कहा है? वैसे तो मैंने रिश्तेदारों को काफी अर्से पहले कहा था। नहीं, वो डेट उनको बता देना कि किस तारीख को आपने दावा किया था ये। और 2000 तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले किया है वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे इल्म दिया गया है। हजरत अब्दुल गफार जंबा साहब ने 1993 में इस पेशन गवाही का सारा कुछ लिख कर हजरत मिर्जा ताहिर अहमद को मसद भेजा था लंदन में। जिसने पहले इसकी क्लियरेंस की उसको ज्यादा इल्म हुआ या बाद में उनकी किताबें पढ़कर इल्म हासिल करने वाले को ज्यादा इल्म हासिल हुआ? पहले और बाद का बात नहीं है, ये जो है तो अगर आपको पहले इल्म होता तो आप उनसे पहले ये इल्म लोगों पे जाहिर करते। आपने 1993 से बाद में ये इल्म जाहिर कर रहे हैं। मैं तो ये आपने उनकी किताबें पढ़ कर तो उनका इल्म, मतलब जैसे मुसलमा कज़ाब था ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां पढ़कर वो भी वैसे की पेशन गोइयां कर देता था कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी होनी है, तो मेरा भी साथ नाम हो जाएगा कि मैंने भी ये की थी। देखिए, मैं तो ये पेशन गोई को दूसरे किस्म मानता हूँ, और वो जो है तो वो तो हाँ, ये ताहिर साहब ये सुनिएगा, उनसे देखा है ताहिर साहब, उनको इसमें डालता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये सारी अगर आपको इल्म दिया गया था तो मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि सदी का आप कौन सी डेट है, इस्लामी सदी की कौन सी डेट है? 1400 कितना है? अब ऐसे करते इस बार से कुछ नहीं बनता, आपसे गुफ्तगू से बस इधर खत्म कर देते हैं। अब 1400 कितना है? अब ठीक है, फिर किसी वक्त बातें करें, अब मुझे कुछ काम करना है। नहीं, आप ये बता दें इस्लामी सदी का कौन सा हिस्सा चल रहा है अब? फिर ये सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कल फिर बात होगी। ताहिर साहब क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं, मुझे कुछ काम करना है, मैं सारा दिन इधर बैठा हूँ। अच्छा, आपने पहले क्या दिया था, आप कह रहे थे मुझे इस वक्त करो, मैं उस वक्त से बैठा हूँ।
नहीं देखें आप, अब इस वक्त आपको सवालों का किसी का जवाब नहीं आया, ना आप अपनी पेशगोई के दलाइल पेश कर सके। आप समझते कुछ नहीं है, ये झूठे बंदे की निशानी होती है। आप भाग रहे हैं, सदी का कौन सा हिस्सा चल रहा है? तो अब आप सब कुछ बातें फिर कर लेंगे। हाँ, आप भाग रहे हैं, तो ये तो आपने अपने झूठा होने का सबूत दे दिया है। आप भाग रहे हैं इस वक्त ना, नहीं भाग क्यों रहा? तो आप कहते थे कि मेरा मुकाबला करो, तो हमने जब पेशगोई के मुताबिक आपसे पहला दावा करने वाला हजरत अब्दुल गफार जंबा साहब है, और आप सब लोगों को मसबाज में होश आई है मिर्जा ताहिर के खुतबे के। नहीं, मुझे पहले अल्लाह ने बताया था। अगर पहले बताया था तो पहले आपने शाया क्यों नहीं किया? उनकी किताबें पढ़ कुछ लोगों को बता सकता। वदूद साहब एक मिनट आप स्टॉप करें। मैं इनसे पूछता हूं कि ये भाग क्यों रहे हैं? ये तो झूठे बंदे की निशानी है। मैं कह रहा हूँ कल कर लेंगे ना बात। तो आप भाग रहे हैं, आप मुकाबले बात क्या है? बात तो जंबा भागता है कि नहीं, आप तो भाग रहे हैं। इस तरह दुम दबा के ना भागें, आप मैदान में रहें, शेर बनिए। तो फोन करता वो कहते जलसे मसरूफ है। हाँ, तो 4 मिनट के लिए भी वो नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, वो तो हमारा जलसा है, आपको भी पता है कि हमारा जलसा है, और उसमें जलसे में वो कैसे आपका इमाम है कि वो भागता है? 4 मिनट के लिए भी नहीं आ सकता। नहीं, ये झूठे बंदे की निशानी होती है, वो भागता है, हम तो उसके पैरोकार आपको डट कर आपका मुकाबला कर रहे हैं। चैलेंज करता हूँ किसी वक्त भी, देखें झूठा चैलेंज आप वैसे करते जा रहे हैं। चैलेंज किया है कि आप मेरे साथ आप तो सिर्फ अल्फाज बोलते हैं चैलेंज का, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप चैलेंज आप देते रहते हैं, लेकिन आपके पास इल्म है कोई नहीं। ताहिर साहब आप भागे ना, आप अपनी सच्चाई के दलाइल दें। सामने 2 प्याले रख लेते हैं, मैं भी पीऊंगा, आप भी पीना। जजिस बच्चे बिल्कुल बच्चों की बातें करते हैं। हाँ, आपका जो दावा है मैं उसी बाइबल से आपको बता रहा हूँ। बाइबल मानते हैं। सामने रख के 2 प्याले पियो जहर के, जिसका होगा ये आप क्या कर, आप क्रिश्चियन है क्या? वदूद साहब आप खामोशी इख्तियार करें 2 मिनट के लिए। मैं इनसे पूछता हूं कि ये आज इन्होंने कहा था कि मैं अपने दलाइल भी पेश करूंगा और इस पेशगोई के मुतालिक मैं इल्म भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आज आपको बताता हूँ मगर आप एक लफ्ज भी, आप रूहानी वो कुछ भी नहीं है, समझ तो आप नहीं समझते। मैं ये अर्ज करूं, इंशाल्लाह बात करेंगे कल। इस बंदे ने आज एक लफ्ज भी पेशगोई के मतलब नहीं बताया, और इसने बता दिया कि साल पेशगोई मेरे बारे में 2011 में आपने वो पेशेंट गोई तो 2011 में बता दिया। सही है वदूद साहब एक मिनट स्टॉप। इस बंदे ने 2011 में वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को गालियां भी दी हैं, और आज ये कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, और इस वक्त ये आज दलाइल भी नहीं दे सका, और पेशगोई का इल्म भी इसके पास कोई नहीं, तो अब ये भाग गया है हमारे। ये सारे